Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics, Cadet College, Panwakir. Welcome you all in our online video lectures. Dear students, today we will discuss about chapter number 11, heat. The topic that we will discuss today are introduction to heat, temperature, liquid in glass thermometer, and linear thermal expansion. First of all, we will discuss what is heat. A heat is simply form of energy which travels from a hot body to a cold body. Or heat is a form of energy transferred from one body to another body due to difference of temperature. हीट हमारे पास वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है एक गर्म जिस्म से एक ठंडी जिस्म के अंदर, या हीट हमारे पास एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर मुंतकिल होती है। वो इसलिए मुंतकिल होती है क्योंकि दोनों बॉडीज के अंदर दर्जा हरारत का फ़र्क होता है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमेशा हमारे पास हीट क्या होगी, फ्लो होगी, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ you must know that different bodies possess different energies. Hot body possess mucher quantities as compared to cold one. Heat is measured by a simple device named as calorimeter. As the heat is energy, therefore its SI unit is also joule. Now temperature. We have already discussed this word in the definition of heat, that heat can transfer from one body to another body with the difference of temperature. Now, what is the temperature actually is? A temperature is degree of hotness or coldness of a body, or a temperature is measure of heat flow. कि जब भी हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा हमारे पास एक जिस्म के अंदर मौजूद गरमाइश या एक जिस्म के अंदर मौजूद ठंडेपन को मेजर करवाती है। अभी किसी भी बॉडी के अंदर हॉटनेस और कोल्डनेस ड्यू टू द हीट, उस हीट को मेजर करने के लिए वी आर ऑलवेज यूजिंग द टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज अगेन a physical quantity which is measured by a simple device named as a thermometer. As you see in the figure, here is a thermometer. With the help of that device, we can easily measure the temperature. Now, the heat and temperatures are directly proportional to each other. If a body possesses a great amount of energy or great amount of heat, that means it has a larger temperature. In same case, if a body has less amount of heat, then it has a low temperature. It means that high temperature depends, or the high temperature possess only those bodies who has amount of heat. So heat and temperature are directly proportional with each other. There are the three different scales on which we can easily measure the temperature. They are Celsius or centigrade scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. But remember one thing, the SI unit of temperature is only Kelvin. Thermometric properties. It is a property of matter which change with temperature. कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की वो खासियत है जिसमें जब हम उसको टेम्परेचर दें, इट मीन्स कि हम उसके टेम्परेचर को चेंज करें, चाहे वो टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो चाहे वो टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो, तो इन टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से उन मटेरियल के अंदर जब चेंजिंग आए तो ऐसे
प्रॉपर्टी को हम नाम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ लिक्विड ग्लास थर्मामीटर। मोस्टली जब भी हम थर्मामीटर की बात करें तो आज के दौर में इन अ डिजिटल और मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, digital and analog. Here we are discussing about the analogs, and there are the two different types of liquid which we are using in a thermometer. Number first is mercury, while number second is alcohol. So herefore we are discussing about the properties of mercury, also discuss why we are using that mercury in that glass for the purpose of measurement of temperature. Now the first one is a mercury is good conductor of heat. The first one is mercury is good conductor of heat. It means that when we are increasing or we are giving the temperature to the mercury, that heat or temperature can easily pass from it, and those material which can absorb or pass the heat and temperature called as a good conductors. It expands on increasing temperature and contracts on decreasing temperature. कि जब भी हम मरकरी को टेम्परेचर दें तो उस मरकरी के अंदर एक्सपांशन आ जाएगी, और जब भी हम उसके टेम्परेचर को कम करें इट विल स्टार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, कि वो इंक्रीज टेम्परेचर से बढ़ जाती है और टेम्परेचर को कम करने से उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। अगेन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 सेंटीग्रेड while its boiling point is 360 centigrade. Now this is the main reason why we are using that liquid in a thermometer. As you compare this measuring, freezing and boiling point with water, the water can freeze on 0 centigrade while it's on 100 centigrade. As compared to water, now the mercury can freeze at -39 centigrade and boil at 360 degree सेंटीग्रेड और सेल्सियस। तो जो बुनियादी सबब है इस मरकरी को यूज करने का वो ये कि वो जल्दी से कभी भी फ्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 सेंटीग्रेड है। जैसे कि हम जिस एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं वहाँ -1 से लेकर -5 तक जब टेम्परेचर चला जाए देन इट स्टार्ट स्नो फॉलिंग। तो ये -39 इट्स अ वेरी 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 लो टेम्परेचर विच द मरकरी पजेस फॉर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे ही अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी है 360 सेंटीग्रेड एंड इट्स अगेन अ बिग वन एज कंपेयर टू द वाटर। कि पानी से बनस्पत इसकी जो पॉइंट है वो ज़्यादा है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 times ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम इसको थर्मामीटर के अंदर मोस्टली इस वजह से भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो कोई भी पेशेंट जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 या 110 या 120 तक भी आ जाए तब ये मरकरी उस टेम्परेचर को आसानी मैयर करवा सकती है विदाउट एनी बॉइलिंग। तो वो बॉइलिंग तक नहीं जा पाएगी। वो वजह ये है क्योंकि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अ 360 सेंटीग्रेड। नाउ द मरकरी हैज अ शाइनिंग सिल्वर कलर। वो हमेशा एक शाइनिंग सिल्वर कलर के कलर पजेस करता है अपने पास, और मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, द रीडिंग कैन बी इजीली मेजर्ड। मरकरी के पास एक खासियत है कि जब भी आप जिस उसको किसी कंटेनर के अंदर लेंगे तो इट डज नॉट वेट दैट कंटेनर, वो उस कंटेनर को कभी भी गीला नहीं करता, और उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कोई भी टेम्परेचर किसी भी बॉडी के अंदर आसानी मेजर कर सकते हैं। मरकरी हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट रेस्पॉन्स क्विकली टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। Now, what is thermal conductivity? A thermal conductivity is a process in which the material can absorb, or it is the ability of that material how much the heat or how much the temperature can be absorbed in that body। कि मरकरी के पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो कम टेम्परेचर पे भी ज़्यादा क्विकली से रेस्पॉन्स करता है, और आप थोड़ा भी उनके टेम्परेचर को चेंज करेंगे देन इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग।
The thermal expansion of mercury is a fourth of that of alcohol. Thermal expansion is again the property in which the material can be expand or the materials can be changed by heating. थर्मल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो मरकरी की, वो अल्कोहल के साथ या कंपेयर करें अल्कोहल से तो इट्स अ फोर्थ टाइम देन अल्कोहल. Now we have a alcohol in a glass thermometer. We will discuss all its properties. इससे पहले हमने मरकरी के मुतालिक डिस्कस की थी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और इनको हम क्यों ग्लास थर्मामीटर के अंदर यूज करते हैं. नंबर फर्स्ट, इट एक्सपैंड्स ऑन राइजिंग टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर. कि अल्कोहल भी मरकरी की तरह जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है और जब इसका टेम्परेचर हम कम करें इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 150 सेंटीग्रेड 15 while the boiling point is 78 centigrade, commonly used where the temperature is about minus 40 centigrade. Compared to mercury, अल्कोहल की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 115 सेंटीग्रेड, जबकि मरकरी की 39 थी माइनस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की 78 सेंटीग्रेड है और मरकरी की जो बॉइलिंग पॉइंट थी वो 360 सेंटीग्रेड. तो अगेन अल्कोहल को भी हम नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर कभी भी फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि माइनस 115 इज अ वेरी 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 लो टेम्परेचर which is required for the freezing of that alcohol. अभी इस अल्कोहल को हम क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 सेंटीग्रेड है जो वाटर से भी कम है. तो अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पेशेंट जिसका बॉडी टेम्परेचर 100 से अबव होगा तो वहाँ अल्कोहल ग्लास थर्मामीटर अगर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर बॉइलिंग होना शुरू होगी जिसकी वजह से आपका वो जो थर्मामीटर है वो टूट जाएगा. तो इसलिए ये हम क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर यूज नहीं करते. ये मोस्टली उस एरिया के अंदर हम यूज करते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस 40 सेंटीग्रेड हो. नाउ अ लिक्विड इज अ कलरलेस लिक्विड. कि अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड है, उसके पास कोई भी अपना कलर नहीं, while the mercury has shining. Alcohol waits on containing and strikes the capillary tube so reading cannot be taken clearly. कि अल्कोहल को हम जिस भी कंटेनर के अंदर लें तो वो उस कंटेनर को गीला करता है, उस कंटेनर को वेट करता है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स उस कैपिलरी ट्यूब में या उस कंटेनर में रह जाते हैं जिनकी वजह से हम कोई भी रीडिंग क्लियरली नहीं ले पा रहे. Now it has a less conductivity, thermal conductivity as take a log knife to take the temperature. कि थर्मल कंडक्टिविटी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो प्रोसेस जिसमें मटेरियल्स टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करें, एबिलिटी मटेरियल की जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर पाए उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं. अभी मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी हाई थी, अल्कोहल की थर्मल कंडक्टिविटी लो है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है किसी भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने में. इट एक्सपांड्स, its expansion is nearly 1/4 time to the expansion of mercury. इसकी जो इंक्रीजिंग का अमल है वो मरकरी से कंपेयर उसका चौथा हिस्सा होता है. नाउ थर्मल एक्सपेंशन. As you see in everything in this world expand on by heating. कि जब भी हम किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल को हीट दें तो हीट देने से उसके अंदर क्या आ जाती है? एक्सपेंशन आ जाती है. एक्सपेंशन वर्ड की माना है टू इंक्रीज. Now, as you all know, matter exists in three different states. There are the many more, but we are normally seeing these three: solid, liquid, gas. Now, in detail, we will discuss about all these expansions. First, we will discuss in solid, then in liquid, after that in gases. Now, what is expansion in solids? When metallic solids are heated, they expand on heating and they contract on cooling is called as expansion in solid. Metallic materials are those materials from which the heat and temperature can easily pass, are the materials they can absorb the temperature or heat. कि जब भी मेटालिक मटेरियल को हम हीट दें तो हीट देने से
उनकी अंदर एक्सपेंशन आ जाए और जैसे ही उस हीट को कम कर दें उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम नाम देंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड। नाउ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। When a body is heated, if expansions occur in length, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी सॉलिड मटेरियल को हम हीट दें और हीट देने से उसके लेंथ में इंक्रीज आए, ऐसे एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एज यू सी कि वी आर कंसीडरिंग अ थिन रॉड with a length delta L. As you see as shown in a figure कि आपके पास ये जो ब्लू लाइंस हैं ये एक हमने मटेरियल लिया हुआ है जिसका जो लेंथ है वो एल नॉट है। नाउ ऑन बाय हीटिंग, हीट देने से इसके लेंथ में इंक्रीज आ रहा है और ये इस इंक्रीज को हम जाहिर कर रहे हैं डेल्टा एल से। इनिशियली व्हेन देयर वाज ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, देयर वाज टेम्परेचर सिंपल टी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और कितना बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी तक, तब उसके लेंथ में जो चेंज आएगी वो डेल्टा एल होगी। तो सिंपली व्हेन देयर वाज एल, इट्स टेम्परेचर वाज, वी कैन मे से सिंपली T1. नाउ ऑन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन्स कि फ्रॉम T1 to T2, the length of that material increased also. And how much it increased? It increased delta L times. Now if we want to find the change in temperature, we will always minus final temperature from, we can minus final initial temperature from final temperature, then we will get the change in temperature delta T. So here the delta T will show the change in temperature. We can get that by subtracting final initial from final. Now as you see, delta L is change in length which is directly proportional to original length. ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनके रिलेशनशिप डायरेक्ट होगी। और जो चेंज इन लेंथ होगी उसका चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड क्वांटिटी में हम टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसमें चेंज आएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट की साइन लेते हैं, वेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट which is called as a coefficient of linear expansion। यहाँ जो अल्फा हमने लिया हुआ है वो अल्फा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम नाम देंगे coefficient of linear thermal expansion। To find the value of alpha, we are simply rearranging the above equation. Then alpha will equal delta L upon L delta T, where delta L is change in length minus original length and delta T will be change in temperature minus original temperature. So the coefficient of linear expansion will be defined as the ratio of change in length upon original length into change in temperature. That will give the ratio of coefficient of linear thermal expansion. And it is the change in length per unit length per centigrade, or you may simply write it coefficient of linear thermal expansion is change in length upon original length and change in temperature. The SI unit of linear coefficient of linear thermal expansion will be only centigrade inverse or Kelvin inverse, because the length is ratio of same quantities as the unit of delta L is meter and is also meter, they will cancel out. Then the unit of temperature is Kelvin, therefore Kelvin or centigrade, therefore the SI unit of coefficient of linear thermal expansion will be centigrade inverse or Kelvin inverse. Thank you very much. Hope you have understand the lecture. If you ask any question, you may ask in comment section. Thank you.